Okay, so a very good morning and a warm welcome to everyone present here. I, Himangi Pilkavar, a Web Development Associate at Gyani Rudra, on behalf of the whole team of Gyani Rudra, welcome you all to this live interactive session on living in the age of pressure on the occasion of World Mental Health Day. So let me begin with what exactly Gyani Rudra is all about. Like it is an initiative to help individuals come out of the rat race and become aware of their true potential to work on the journey of happiness and success in their career. Like for more details about Gyani Rudra, you can search us on Google and you can even visit our website. So let's proceed further. For this interesting session, we have with us two amazing experts who are working with their ventures to improve the life of their clients by helping them in shaping their mindset for success and transforming their life. So our today's first guest is Miss Anamika, who is the co-founder of the Transformational Lab, and our second guest is Miss Vandana, who is the founder of Mind Art Coaching and Consulting in Australia. We welcome you, Anamika and Vandana, ma'am, to this session. It's really a great pleasure to have you both with us in this Thank session. you, Thank you. Himangi. Okay. So now I would like to invite our creator and crafter, Ronak Gupta sir, to proceed with this session with a little idea of what exactly this session is going to be and an idea about the topic. So over to you, sir. So thank you once again. Thank you everyone for joining and thank you Himangi for such a wonderful welcome to everyone and introducing the guests to the audience. And now let me begin with giving you all an idea that what is the topic and what is the theme of today's particular session. So basically when I was planning this particular session around the theme of World Mental Health Day, then as I was searching some what I can say the facts or statistics, some content on the web, then I found some statistics which surprised me a lot. And they were like today nearly 1 billion people on this earth live with a mental disorder. Every 40 seconds, a person dies by the suicide. And about 50% of the mental health disorders start by the age of 40. And that was quite surprising to me. That by the age of 14, if 50% of the mental health disorders are starting, then it is quite a big concern. So these statistics compelled me to think then why it is so or likewise कि जब मैं इस question को समझ रहा था देख रहा था so then I understood that we all are running some kind of race in our life, whether in our career or in our life or whatever be the aspect we can understand. कहीं ना कहीं हम एक रेस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब एक भाग दौड़ है कहीं ना कहीं जिंदगी में जो हम जा रहे हैं. And surprisingly, the common thing in every race is that we want to achieve something. And for that achievement, what I can say, there are quite numbers which are quite important. So हम कहीं ना कहीं कुछ numbers achieve करने के लिए, whether they are marks or something, whatever it could be. So we are running that race. और सबसे important अगर आप connect करें in between the past 20 years or 30 years or even मैं अपने experience से कहूँ so in between the past 10 years. So numbers to be achieved are increasing day by day. And when these numbers are increasing day by day, so important is कि साथ साथ क्या है आपके दिमाग में pressure बढ़ता जा रहा है. And because of that particularly pressure, we all are living in this particular age. What I called it then finally I decided कि इसकी theme क्या होनी चाहिए, like living in the age of pressure. Because whether there are students, there are professionals, there is a relationship, whatever it is, कहीं ना कहीं हम कहीं हर हर कोई एक प्रेशर में जी रहा है. वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है ऑल्दो. So then again coming to that pressure is to get highest marks in your school or college or joining a particular career path, then getting highest package in your placements, performing high in a corporate environment, or even it could be the pressure of handling a relationship, desiring for more and more materialistic thing, or it could be from any other aspect of our life which we may discover during the conversation. But important is to understand that pressure which was coming earlier at a certain age of around 14 or 16, जो मैं particularly समझ सकता हूँ, then now that pressure is coming at a very tender age of around 4 or 5 years, and that is again becoming a big and big concern. So that's what made me realize that the theme of this session should be living in the age of pressure. And now beginning on this note, my very first question would be from our experts that
what kind of pressure you have faced in your life, and when it comes to today's generation, then what difference do you observe in the kind of pressure they are facing and you have faced? So that is my first question, and let's start with, I think, Banna ma'am first. Thank you, Ronak ji. And first of all, kudos to you and congratulations to you for bringing us all together here today for this important, very important conversation. And living in the age of pressure, I believe everybody who is attending this, no matter what age frame they are in, all of us do feel that pressure somewhere or the other. Now, when to come to your question, what kind of pressure did I face in my life? Frankly, I did not face much pressure till the time I got into engineering. Nowadays अब प्रेशर बिकॉज क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं बट हमारे पास अभी भी वो स्टीरियोटाइप्स हैं और स्टीरियोटाइप्स ही नहीं बट हमारा इनेट नेचर है कि हम अभी भी वी वांट इंटीमेसी इन लाइफ वी वांट टू फील कनेक्टेड टू पीपल हम फोन से कभी कनेक्शन फील कर ही नहीं पाएंगे फोन के थ्रू वी ऑल वांट टू बी कनेक्टेड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट और वो चीज जब नहीं होती है फिर हमें लगता है कि अरे क्यों नहीं हो रही है अब जिसका सोशल मीडिया में पोस्ट आया है वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं ओके देन अगेन दैट लूप ऑफ कंपैरिजन गोज ऑन कि हर किसी की फोटो में सब खुश है सब सुंदर है मेरी ही लाइफ खराब है मतलब मैं ही डिस्कनेक्टेड हूँ क्या अपने पार्टनर से एंड देन सो प्रेशर पहले बहुत पॉइंटेड था लाइफ में आज के एरा में मुझे लगता है कि प्रेशर हर जगह है ओके इट्स सराउंडिंग अस एवरीवेयर इट्स लाइक इन द स्मॉल थिंग्स क्योंकि पहले के जमाने में everybody used to work they used to go back home then they would spend time with the family and they would do things together आज की डेट में we have to take our time during the year specifically कि अभी 9 महीने काम कर लिया तो एक हफ्ते का ब्रेक बनता है तो that kind of thing it's पहले हम हर दिन को कुछ हिस्से में काम करते थे जीते थे everything was defined एंड आई एम नॉट सेइंग कि आज के जमाने में जो है वो गलत है या नहीं है बट जस्ट दैट हम बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई लव व्हाट यू शेयर्ड अनामिका और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि प्रेशर तब भी था प्रेशर आज भी है और प्रेशर रहेगा तो जितने जल्दी हम ये मान ले कि प्रेशर कहीं जाने वाला है नहीं उतना ही अच्छा है कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट पहले अलग फॉर्म में था अब अलग फॉर्म में है पर ये मेरे हाँ जी बिल्कुल नहीं कोई तो मैंने ये बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये रिसर्च पढ़ी सुनी थी उन्होंने कहा कि ऐसा मिथ है कि आज एरा में प्रेशर ज्यादा है बट मेंटल डिसऑर्डर्स में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है ओवर टाइम इफ दे से इन द रेट एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन द रेट इज स्टिल द सेम रेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज स्टिल द सेम जैसे अगर हम ह्यूमैनिटी को एक इंसान समझते हैं पूरे ह्यूमैनिटी को अगर हम एक इंसान समझते हैं तो वो भी उथल पुथल के थ्रू जाता है कभी अच्छे टाइम आते हैं कभी बुरे टाइम आते हैं इट गोज टू टाइम जैसे वर्ल्ड वॉर जब हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे सोच सकते हैं आप क्या एंग्जाइटी रही होगी लोगों की किस तरह से वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होंगे एट दैट पॉइंट इन टाइम तो बट लोग कम थे लोग डिस्कनेक्टेड मतलब डिस्कनेक्टेड थे क्योंकि वो आज के जमाने में बिकॉज ऑफ द वेब हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि हमारी आवाज एक बन गई है लोगों को पता नहीं था एक साइड में कितनी एंग्जाइटी है दूसरे साइड में नहीं है कैसे मैनेज हो रही है देयर वाज नो कम्युनिकेशन लाइक दैट बट जब वो रिसर्च में बताया था उन्होंने कि इट वाज स्टिल एग्जिस्टिंग हर एरा में एंग्जाइटी और ये जो प्रेशर है वो एग्जिस्ट करता था उसके फॉर्म्स अलग थे और आज अगर मैं बोलूंगी तो जैसे नामिका ने शेयर किया आज हम हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जिसका हम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कर भी रहे हैं उसी की वजह से हम आज यहाँ पर साथ में हैं एट द सेम टाइम इसकी वजह से एक तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है विच इज गुड बट आवाज भी बहुत हो रही है ठीक है अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है अचानक आई कैन ज्वाइन मेनी डिफरेंट पीपल हु हैव द सेम प्रॉब्लम या फिर आई कैन मेक अ प्रॉब्लम रियली अ बिग प्रॉब्लम इवन इफ इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम क्योंकि अब उसको वेट बहुत ज्यादा मिल रहा है और वो पूरी दुनिया से कहीं से भी मिल सकता है आजकल मूवमेंट स्टार्ट करना कितना आसान हो गया है एनीथिंग दैट यू कैन जस्ट पोस्ट इट एंड यूल फाइंड 1000 अदर पीपल सपोर्टिंग यू ऑन दैट तो सच बात ये कि प्रेशर है प्रेशर रहेगा अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके थ्रू और हम अपने आप को क्या चीज तो जैसे
अनामिका ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि पहले लाइफ सिंपल थी और प्रेशर एक पॉइंट प्रेशर था। तो अगर हम पहले के जमाने के लोगों को बोलते हैं तो कहते हैं कि हमें तो अपने पास अपने आप पे इतना ध्यान देने का टाइम ही नहीं था। सही बात। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी थे, क्योंकि जिस तरह का अब ऑटोमेशन हो गया है, वो ऑटोमेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। मसाले हम मतलब पीस रहे हैं, खुद पीस रहे हैं, खाना सब्जी मतलब पूरे घर के लिए खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। बच्चे ज्यादा होते थे, उनके पास टाइम ही नहीं था। तो उनके हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट है हम अपने आप पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। और पर क्योंकि अब हम टाइम दे रहे हैं, पर हम, मैं ये कहती हूँ आई एम अ मिलेनियल माई सेल्फ, मुझे लगता है कि हम अबंडेंस में पैदा हुए हैं। हमारे पेरेंट्स के पास अबंडेंस थी जब they had struggled, but they had given us a life in which we had abundant things already. तो हमारे, मुझे ये मेरा मानना है कंप्लीटली कि हम ना बहुत कम अनकंफर्टेबल हुए लाइफ में, हम ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ में जिए। तो कोई भी डिस्कम्फर्ट हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट है और बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, और हमारा उसको लेकर रिएक्शन एक रियल थ्रेट की तरह है। तो because we are living in an era where we have not been too uncomfortable, we have started showing that discomfort for little things, and that increases a lot of pressure, and we are putting a lot of pressure on ourselves. And then because of the interconnectivity and because of, जैसे एग्जाम्पल लिया नमिका ने कि मैं देख रही हूँ कि और किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, तो एक नहीं कंपेयर करने के बावजूद भी कंपैरिजन आ जाएगा समवेयर, क्योंकि इट इज थ्रोन एट योर फेस। फोन लिया नहीं कि इट्स जस्ट देयर, तो कैसे आप नहीं सोचोगे, कुछ तो सोचोगे, एक तो थॉट आएगा शायद, मे बी कोई बहुत आसानी से उसको लेट गो कर देता है, बट कोई कोई उसको पकड़ के बैठ जाता है। एंड स्पेशली जो ऑलरेडी एंजाइटी को प्रोन है, जिनके फैमिली में भी सपोज है एंजाइटी और उनमें भी है, इट जस्ट इंक्रीजेस, उनको ज्यादा फीड मिल जाती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो नॉट दैट सोशल मीडिया इज कॉजिंग इट, but it is definitely enhancing it in some way or the other, and that's the difference, that's a major difference that I feel that is there in the era today. क्योंकि हमारे सामने हमने देखा है जब सोशल मीडिया नहीं था, मतलब ऑर्कुट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी काफी लेटर, जब हम 11th में वगैरह, आई थिंक अराउंड दैट एज आया था। बट वी हैव क्रॉस्ड अ जनरेशन विदाउट हैविंग सोशल मीडिया, एंड लाइफ वाज वे डिफरेंट देन इट इज नाउ। जैसे आज के बच्चों को, you know, I sit and try and take time to understand how they're thinking, because their thinking is way different, and it is all because of the time that they were born in. So that's what I feel about how it's different today. So sir wants One thing I would like to add is that जैसा आप दोनों ने कहा है, आप अगर देखें कि किसी की फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो हमेशा बहुत बढ़िया ही होगी, और बहुत सारे लोग जो हैं ये फेसबुक पोस्ट से बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो और लोग हैं वो इतने सुंदर दिखते हैं और कहाँ कहाँ वर्ल्ड में घूम आए हैं, मैंने ये नहीं किया। लेकिन इसके पीछे एक सिंपल सी चीज़ है जो मेरी व्हाट्सएप की भी टैग लाइन है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हर एक आदमी ये सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं परफेक्ट हो जाऊं। हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि परफेक्ट पर्सन अगर हो तो वो अनबियरेबल हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक किसी में कमजोरी नहीं देखेंगे आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हर एक आदमी में कमजोरी होना बहुत जरूरी है, वरना हम खुदा बन जाएंगे, हम अल्लाह बन जाएंगे, जो कि जिसमें कोई कमजोरी नहीं होती। ये कमजोरी होना ही हमारा एक ह्यूमन बीइंग बनना होता है। तो मुझे बस यही कहना है कि हर एक आदमी परफेक्शन की तरफ अगर दौड़ेगा तो उसको दुख ही मिलेगा। हर एक आदमी को यही सोचना चाहिए कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बहुत से सर आपने, मतलब एक फैक्ट बात है कि हर किसी को हर चीज नहीं मिल सकती, दैट इज क्वाइट गुड। और अब हम आते हैं नेक्स्ट, बेसिकली जो क्वेश्चन था वो बेसिकली यही था, व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दिस ऑल प्रेशर, और बेसिकली जो एज पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हम डिस्कस भी कर रहे थे। सो नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, जैसे सर ने कहा कि व्हाट्सएप की डीपी या फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर, सो मैटर कम्स टू दैट इमेज, है ना, वो चाहे फिर वो आपकी पिक्चर की इमेज हो
या एक सोशल में इमेज हो. सो व्हाट आई कैन से बेसिकली क्या होता है कि आप घर के अंदर चाहे जैसे भी हैं, है ना, आपको लगता है कि आपकी बाहर एक इमेज बहुत अच्छी जानी चाहिए. So what I believe that is one of the psychological factor कि जो कहीं ना कहीं प्रेशर को enhance करता है, whether that is through social media or something, anything it could be. So if you can what I can say explore some more on that note. संजय सर आप स्टार्ट करेंगे अभी? नहीं, आई ऑलरेडी सेड दैट यू सी, जो हमारी जो डीपी होती है और जो फेसबुक पोस्ट होते हैं, वो सब हम बहुत ही सिलेक्ट करके बनाते हैं. इनफैक्ट हम अगर जैसे हीरोइंस को देखते हैं, हमें हमेशा वो बड़ी स्लिम ट्रिम फिट ब्यूटीफुल दिखती हैं. लेकिन किसी ने ये कहा था कि अगर आपको मतलब डोंट माइंड बट किसी की खूबसूरती देखनी है तो सुबह उठने के बाद उसे जस्ट देखिए, तब आपको पता चलेगा वो कितनी खूबसूरत है और कितनी एक्चुअली में वो दिखती है, और क्या उसकी डीपी है और क्या उसकी फेसबुक प्रोफाइल है. तो आप मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें दिखाया जा रहा है वही असलियत है. असलियत कुछ और भी होगी. और हमें बहुत सारे लोग इसी बात पे कि देखिए और कितना अचीव कर रहे हैं और मैं कितना दीन हूँ, हीन हूँ और मतलब कितना डिप्राइव्ड हूँ, ये मत सोचिए. क्योंकि जो ये शो विंडो है ना, ये शो विंडो जो है, वेयर हाउस में बहुत अंतर होता है. शो विंडो में बहुत कुछ दिखाया जाता है, वेयर हाउस में असलियत पता चलती है. मुझे यही कहना है बस सिंपल वर्ड्स में. एग्जैक्टली. बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने कि वो तो है. देखिए all of us have different identities. In fact we are so attached. ego is attached to the identity. मेरी आइडेंटिटी क्या है, लोग मुझे क्या समझते हैं, ये इंजीनियर है, ये कोच है, ये एवरीथिंग इज अबाउट दैट आइडेंटिटी. अब बट वी जस्ट नीड टू नो कि एक आइडेंटिटी एक तरीका है बस आपका गोल अचीव करने के लिए. इट्स नॉट हु यू आर. वो बस आपकी आइडेंटिटी, वो आपने पहना है टू अचीव अ सर्टेन गोल दैट यू आर लुकिंग टू अचीव. तो फिर से आई कम बैक टू द पॉइंट कि कंपैरिजन कैसे ह्यूमन अकेला एग्जिस्ट करेगा क्या? ह्यूमैनिटी हमेशा, देयर विल बी मेनी मोर पीपल अराउंड अस. वी लव कनेक्शन, वी वांट टू बी कनेक्टेड ऑल द टाइम. तो लोग तो ज्यादा रहेंगे, तो जब ज्यादा लोग रहेंगे क्या हमेशा कंपैरिजन ही होता रहेगा? इट्स नॉट अबाउट दैट. अ पर्सन विद अ हेल्दी सेल्फ एस्टीम विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द कंपैरिजन. सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ फर्स्ट आई फील अबाउट मी. मुझे अपने बारे में क्या लगता है. अगर मैं अपने स्किन में सेफ फील करती हूँ, कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो जब कोई पोस्ट करेगा कोई चीज कि वो बाहर गए, इट विल इंस्पायर मी प्रोबेबली. इट विल आई फील कि हाँ अरे वाह इन्होंने ये चीज की. विल आई बी एबल टू डू दिस? व्हाट शुड आई डू टू डू दिस इफ इट कॉल्स टू मी? पर सो things will keep existing around us. How we look at them depends on what my inner environment is. मुझे अंदर से कैसा महसूस होता है. अगर मैं अनसेफ हूँ, गोइंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट, अगर मुझे अपने आप पे डाउट है, मैं वो चीज दूसरों में ढूंढूंगी और ढूंढ के अपने आप को छोटा और फील करने की कोशिश करूंगी. क्योंकि वो जस्ट फीड कर रहा है मुझे कि हाँ देखो उसने प्रूव कर दिया, वो ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो अच्छी नहीं लग रही हूँ. क्योंकि मुझे अपने आप पर डाउट है. बट अगर मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल हूँ या मेरा पूरा फोकस है कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूँ, तो देन दैट जस्ट बिकम्स एन इंस्पिरेशन और प्रॉब्ली जस्ट अ थॉटिंग पासिंग बाय थॉट. आपने देखा, आपने उसके बारे में कुछ सोचा और वो चीज चली गई. यू डोंट मेक अ मीनिंग और अ स्टोरी. हर चीज की ना हम कहानी बनाते हैं. दिखाई तो जैसे सारी चीजें देती हैं, लाइक जस्ट लाइक थॉट्स पासिंग बाय, पर हम उसको एक कहानी बनाते हैं, मीनिंग अटैच करते हैं और फिर वो मीनिंग हमारे पास रह जाता है. वो जब रह जाता है फिर वो हम अगले दिन, महीनों, सालों उसको लेकर दैट्स हाउ वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी. तो अगर हम उसको उतनी देर में सबकॉन्शियस में जाने ही ना दे, उसका कोई मीनिंग ही ना बताएं और वी जस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स, तो ये कंपैरिजंस हमें मैटर नहीं करेंगी. दैट्स हाउ वी कैन कीप आवरसेल्व्स प्रोटेक्टेड. बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट अफेक्ट. आज के दुनिया में कंपैरिजंस बहुत ज्यादा हैं, अगेन क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है. आज जितने किड्स हैं, आज जितने यूथ है, उतने पहले कभी रहे ही नहीं. एक टाइम पे जितनी प्रॉस्पेरिटी थी, सिमिलरली बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, पैंडेमिक, अभी उतनी रही नहीं. अब देयर
अ न्यू वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां कंपटीशन आ गई वहां कंपैरिजन आ गया। जैसे अनामिका ने मेंशन किया था, क्वांटिटी क्वांटिफाई जहां चीजें हो गई वहां कंपटीशन ज्यादा आ गई। तो कंपैरिजन तो क्योंकि और ज्यादा है, इसीलिए इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टुडे टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स। खुद को इतना रेजिलियंट बना दो कि कि कोई आपको इम्पैक्ट ना कर सके। दैट्स व्हाट आई लाइक टू ऐड टू दिस। Beautifully said, Vandana. So, I would have said the same things which Vandana said, and taking it forward, I feel कि हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसा जिस रंग का चश्मा हम पहन रखते हैं। Correct. ठीक है, हमें सारी दुनिया वैसी नजर आती है। तो जो चीजें हमें अपनी अच्छी लगती हैं, जो हमें दुनिया की है, और जो हम अपने अंदर रिजेक्ट करते रहते हैं, वो जैसे ही हमें बाहर दिखता है हम उन सब चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स सपोज मुझे ये इशू होता और मुझे कोई बहुत ही अपनी मेरी फ्रेंड है जिसने बड़ी सुंदर सी फोटो डाली है, ठीक है, तो मैं पहले उसको देखूंगी, और पहले पहले क्योंकि मैं वो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं उसको देख के मुझे फील होगा कि आई फील एनवी और आई फील जेलसी, जो भी टाइप के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। फिर जैसे कि वंदना ने कहा, तो हम इमोशंस अटैच करते हैं, और फिर उसमें उस बंदी का कोई रोल नहीं है, शी इज जस्ट पोस्टेड अ पिक्चर, बट ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? हमारे अंदर चल रही है, क्योंकि हमने अपने कुछ पार्ट्स को बड़ा ऊपर कर दिया, एंड हम लोगों को वही दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मैं हूँ, ठीक है, अनामिका इतनी अच्छी है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, और अपने ही अंदर बहुत सारे पार्ट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, और हम उसको हमेशा जामा पहना के रखना चाहते हैं कि ये अनामिका नहीं है, वो है, और ये नहीं है। ठीक है, तो हम हमेशा एक सोशल मीडिया पिक्चर की तरह घूमते हुए मास्क हैं। ठीक है, वो जो ईगो ने मास्क पहन रखे हैं ना दिखाने के लिए, क्यों दिखाना चाहता है वो? इसके लिए ताकि लोग उसको बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा लड़का है, जो भी है। तो हम सब ये दिखाना चाहते हैं, और अंदर ही अंदर ये बैटल जो हमें लगता है बैटल बाहर है, सोशल मीडिया इज अ बैटल, लाइफ में बहुत सारे बैटल्स हैं, वो कहीं बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो सब तो अंदर ही चल रहा है। हमारे ही पार्ट्स हमारे ही साथ लड़ते रहते हैं, और हमें हमें लगता है उसने वो ट्रिगर कर दिया मेरे अंदर, उसके कारण से आई फेल्ट लाइक दिस। किसी के कारण से आप अपने आप बारे में ऑलरेडी ऐसा सोचते हो, इसके लिए उस इमेज से आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, तो काम तो सारा अंदर ही करना पड़ेगा, सब अपने साथ ही करना पड़ेगा। वील हैव टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिनको जामा पहना देते हैं, कैमोफ्लेज करके अपने आप को गार्ड्स ऑन करके घूमते रहते हैं सारी जिंदगी की, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम दिस एंड दैट। तो सो लाइक वंदना यूज्ड कि हम आइडेंटिटी बना लेते हैं, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस इज हु आई एम। तो that needs a lot of courage and asking radical questions to ourselves ki, is that what we are? I mean that's okay, right? मतलब perfection क्या है? Perfection क्या है? It's just life, it's a journey. So हम इतना वो perfection and futuristic हो जाते हैं, past में dwell करने लग जाते हैं कि इस moment को भूल जाते हैं। Okay, and इस moment पे हम क्या feel कर रहे हैं वो तो बड़ी दूर की बात है, वो उस पे ध्यान जाना तो बहुत दूर है, बट हम इस प्रेजेंट में ही नहीं रहते, इस मोमेंट पे ही नहीं होते हैं। सो वी आर वेरी मच लिविंग इन आवर हेड्स ऑल द टाइम, दिमाग में ही घुसे रहते हैं। इसके लिए क्योंकि हम दिमाग में जीते हैं, हम अपना अपनी बॉडी से कनेक्टेड हैं ना, हम अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं ना, हम अपने आप को फील करते हैं, तो हम ऑब्वियस सी चीज है कि दुनिया भी तो हमारे माइंड में ही जीती रहेगी। और जितना हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे, हम अपने साथ कनेक्ट करेंगे, हमें सब कुछ लगने लगेगा कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ यार, बाकी सब भी ठीक है अपनी जगह, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मजा आ रहा है, सब खुश हैं, सब खुश है, सब दुखी हैं तो भी इट्स ओके। सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, खुशी दुख, एंड हम अपनी खुशी में भी खुश होते हैं, अपने दुख से भी वी आर ओके विद इट। हम लड़ाई जो ये अंदर की लड़ाई जिस दिन खत्म हो जाएगी तो बाहर की भी खत्म हो जाएगी, फिर वो ट्रिगर्स और नहीं होते हैं। एग्जैक्टली बहुत सही। मतलब एक परफेक्ट चीज अगर कॉमन कंक्लूजन वाली बात कही जाए तो डेफिनेटली एक आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं रहती है कि भाई ये आइडेंटिटी है और हम उसको लीव नहीं करना चाहते हैं।
सो दैट इज हाउ कि हम फिर उस आइडेंटिटी को कहते हैं ना निभाने के चक्कर में भी पुट प्रेशर ऑन अवर सेल्फ, और हम वो डेवलप करते जाते हैं कि नहीं अब हमें ये जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है, सो ऑन सो फोर्थ. सो नाउ कमिंग टू वन पर्टिकुलर फैक्ट कि इतना सारा हम जैसे प्रेशर की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी, वी ऑलवेज गो इनटू द नेगेटिव डायरेक्शंस. बट एक फैक्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रेशर आपको पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है. व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ डेडलाइंस, जहां आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और देयर आर सर्टेन थिंग्स कि आपको अचीव करनी है, सो एट सम लेवल और एट अ पर्टिकुलर लेवल ये आपको एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है. बिकॉज अगर आपका अप्रोच किसी काम के लिए बहुत लेथार्जिक काइंड ऑफ अप्रोच है आपका, कि आप किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, सो अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट बी गिवन अ पर्टिकुलर डेडलाइन, आपको एक डेडलाइन ना दी जाए, आपको एक टास्क ना दिया जाए कि नहीं इस डेट और इस टाइम तक आपको ये चीज करनी है, so then definitely you would not be able to what I can say the complete that particular task. So that's how I think hello, am I audible? Now you're audible. Now you Okay, maybe some issues. So basically I was saying कि कहीं ना कहीं वो जो एक डेडलाइंस अगर ना हो, एक प्रेशर ना हो हमारे ऊपर इस चीज का कि किस तरीके से हमें एक टास्क एग्जीक्यूट करना है. सो व्हेन इट कम्स टू द पर्संस हु आर वेरी लेथार्जिक इन देयर अप्रोच, कि बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, सो उनके लिए डेफिनेटली प्रेशर कुड बी अ पॉजिटिव साइड, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर नोट कि हाउ प्रेशर कुड एक्ट इन द पॉजिटिव वे आल्सो, apart from the negative aspects which we all were discussing? I'll get started. Okay. So pressure. Pressure was always. Basically, I just wanted to add one point. This is also one pressure that who should get started. Who should get started? Ronak ji, you should give a cue. Yeah. कितना आप शुरू करें. So pressure. I feel pressure was always existing. Fear जो है वो it's there for a very good reason. नहीं रहेगा तो बचेंगे कैसे हम? We have survived so far because of fear. Had there been no fear, we would have not been here. So it was always there to protect us, and it continues to be there to protect us. So, but survival related fear इतने आजकल रहे नहीं है. Pressure तो I'll give you an example. अभी कल परसों की बात है, हम लोग जा रहे थे और वहां पर एक ट्रैम बन रही है यहाँ पर पास ही में. तो वो ट्रैम बन रही है, उसके लिए वो रेलवे ट्रैक इंस्टॉल कर रहे थे, और जो रेलवे का वो उन्होंने ट्रैक डाल दी थी, बट उसमें वो गड्ढा बनाते हैं ना जिसमें रेल चलेगी, वो बन रही थी. तो वो ड्रिलर ड्रिल कर रहा था और आग लगी हुई थी, मतलब आग निकलती है ना बाहर, जब आयन मेटल से मीट करता है तो आग आती है. तो माय लिटिल 5-year-old उसने देखा, उसने कहा कि मम्मा फायर. आई सेड oh no look they're drilling. तो वो कह रहा है कि but will it not burn? So I said yeah it will. If a human puts his finger in there it's going to burn. But it's actually required for that metal. It's required to be drilled and that's how the tram is going to function. तो वो किस समय कितना प्रेशर किसके लिए पड़ना चाहिए वो भी तो हमें पता होना चाहिए. चक्कर वो है, प्रेशर की तो जरूरत है ही और हमेशा रहेगी. इन गुड अमाउंट्स इट पुशेस अस टू डू द राइट थिंग्स. इसलिए जब भी so we need to continue what we are doing despite of that pressure, despite of that fear of whatever we feel. In fact coaching में मेरे clients के साथ what I do is कई बार आप किसी चीज का आपकी चाहत है करने की, बट आप वो कर नहीं रहे हो. आप वो पता है, मतलब डीप डाउन इनसाइड यू जस्ट वांट टू डू इट, एवरीथिंग, आपने सारी रिसर्च कर ली, पढ़ाई सब कर ली, बट आप कर ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट स्टार्टिंग दैट हैबिट. जैसे आपने कहा रौनक जी, देयर इज नो नीड, because there is no need for it. Nobody is asking you to do it. It's something that you want to do one fine day. तो वो need create करना बहुत जरूरी है. How do you create that need so that now you are making yourself to do it? So the need becomes the pressure, and which is a healthy pressure. So being attached to what you want to achieve and why it is something that you want to do is it could be that intrinsic motivation that we need. अंदर से motivation चाहिए कि मेरे लिए ये क्यों जरूरी है और मुझे किस तरह से अचीव करना है. और डिटैचमेंट अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है कि वो अचीव होगा कि नहीं होगा, दैट्स समथिंग दैट यू नेवर हैड इन योर कंट्रोल. आपके हाथ में वो चीज है ही नहीं, वो मिलनी है कि नहीं मिलनी है. आपके हाथ में है मेहनत करना, अपना बेस्ट देना. सो एट एनी गिवन पॉइंट अगर मुझे सवाल अपने आप से पूछना है तो एम आई डूइंग माई बेस्ट, दैट्स ऑल. दैट नॉट हिज बेस्ट, हर बेस्ट,
not what my parents are thinking is the best. Am I doing my best? क्योंकि मतलब जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, हम सभी पता होता है कहाँ हम कंची मार रहे हैं, कहाँ हम कॉर्नर्स कट कर रहे हैं और कहाँ हम एक्चुअली सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए. So asking ourselves कि am I doing everything? And if I'm not doing everything and I'm aware I'm not doing everything, then knowing कि रिजल्ट तो वैसा आएगा नहीं जो मेरा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो सकता था, वो नहीं आएगा फॉर द रीजन दैट आई एम नॉट डूइंग. सो प्रेशर इज देयर टू हेल्प अस इफ वी कैन हैव दैट रिलेशनशिप. अगर हम रिलेशनशिप वैसा बना दें, क्योंकि ये जाने नहीं वाला, इट्स नॉट गोइंग टू, सो व्हाई फाइट विद इट, बिकम फ्रेंड्स विद इट, लेट इट वर्क फॉर यू इन योर ओन फेवर. उसके साथ दोस्ती कर लें, उसको अपने साथ बना के रखें और उसके बाद गोल से just being a little detached कि if I do all my best I'll probably achieve it, or I might not achieve it, but I would have definitely grown because I've done what I can do. That's what I feel. So over to you, Anamika. I've given you a clue now. थैंक्स वंदना. आई टोटली अग्री कि पहले बहुत इंस्टिंक्टिव फियर्स होते थे हमारे, जंगल में पीछे से शेर आ जाए, एंड you know, we a lot of fears. We used to live in the jungle, maybe I don't know, thousand years ago, and बड़े survival instinctive fears होते थे. But the thing is कि it's still there in us somewhere, कि हमें लगता है कि अरे अगर मतलब जैसे ही हमारा सर्वाइवल, मतलब कुछ भी होता है लाइफ में तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हमारे सर्वाइवल पे बात आ गई है, कि वो सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं होता, बट हमें फिर भी लगता है कि हमारे सर्वाइवल पे बात आ गई, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट. तो ये अभी भी तो है हमारे अंदर है. नाउ व्हेन इट कम्स, वो एक टाइप का प्रेशर ऑफ फियर था दैट यू हैव टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव कि क्या है कैसा है इधर. अब वो चीज कंटिन्यू हो गई तो बहुत सारे टाइप के प्रेशर्स की तो हमें जरूरत भी नहीं है, जो जो हम आज भी फील करते हैं. तो हमें अवेयर होना पहले जरूरी है कि हम कौन से फियर्स फील कर रहे हैं, और दे आर इम्पोर्टेंट. आई टोटली अग्री विद व्हाट वंदना सेड. दे हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर मी इन माय जर्नी, क्योंकि अब फियर दो तरीके के हो सकते हैं. फियर या तो आउटकम बेस्ड हो सकता है कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, एंड अगर if I get successful, mostly मुझे लगता है कि people don't do things, they procrastinate things not because of fear of failure. वो ज़्यादा procrastinate करते हैं due to fear of success. हो गया तो पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, because they know success is not a one time path. पूरी जिंदगी फिर मेहनत करनी है, और हम मेहनत से तो भागते हैं, इसीलिए तो procrastinate करते हैं, और then we keep giving ourselves excuses. So जैसे मेरे लैपटॉप में एक कोट है कि feel the fear and do it anyway. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत डर लग रहा होता है या बहुत प्रेशर फील हो रहा होता है, एंड इट्स लाइक हाँ प्रेशर हो रहा है, लाइक वंदना सेड बी फ्रेंड्स विद इट. हाँ हो रहा है ना, प्रेशर हो रहा है तो हो रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, व्हाट बेस्ट आई कैन गिव, मैं क्या कर सकता हूँ. और थोड़ा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड प्रेशर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैड प्रेशर. तो मेरे हिसाब से जो मुझे अपने, नॉट गुड एंड बैड एज इन, but useful pressure and not so useful pressure. The not so useful pressure is mostly related to the outcome. Okay, and जब हम good pressure की बात करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, that is more based on the present moment. Okay, वो उस present moment का होता है जिसकी awareness होती है, which is good pressure, and you feel the anxiety and you're like fine, I'm feeling the anxiety and this is giving me a push कि अगर मुझे कोई task करना है, so okay fine, now let me finish this task. वो प्रेशर इस चीज का नहीं है कि मैं मतलब अगर नहीं किया, it's not coming out of fear but it's coming out of an inspiration कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ. okay, I want to do this and I want to do this because I want to feel good, and अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं और क्या करूँगा. it's like a choiceless choice कि इस मोमेंट में करने के लिए ये एक ही चीज है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं दो ऑप्शंस हैं, करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू इट, एंड दैट प्रेशर मेरे हिसाब से इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन फिनोमिनल फॉर माय ग्रोथ. एंड जैसे लोग भी जब मैं भी मेरे क्लाइंट से बात करती हूँ तो जैसे कि एंजाइटी इज अ वेरी कॉमन इशू दीज डेज. तो अ लॉट ऑफ पीपल कम हो से कि आई फील एंशियस फॉर नो रीजन. पहले तो वील हैव टू सी वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, एंड it's
about managing it so that it comes, the more you live in the present moment, anxiety खत्म नहीं हो जाएगी, होगी तब भी, but वो turn हो जाएगी from like that too much pressure वाला anxiety, outcome based anxiety, to present moment anxiety, which is good actually for your work. That's all. Thank you. I would just like to add one thing. I love real life examples, because something which everybody can relate to. I would relate the pressure to something that we all have a pressure, and that is blood pressure. Like so long as I have a blood pressure of 80 and 120, I'm fine, I'm healthy. And I need a pressure is required for the heart to pump the blood to right down to my foot. The problem comes when I have low blood pressure or I have high blood pressure. If I have low blood pressure, I have less of energy and I keep lying down the whole day. And if I have high blood pressure, I have headaches and I have all kind of illnesses. तो मतलब ये है कि ये जो प्रेशर है ना एज सच, आप अगर ब्लड प्रेशर देखें, ब्लड प्रेशर अगर जीरो हो जाएगा तो हम गए भाई साहब। और ये ब्लड प्रेशर जो है एक रेंज में होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि आपको ये हमेशा, जैसे अनामिका ने कहा, वंदना ने कहा, थोड़ा प्रेशर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक डेडलाइंस नहीं होंगी आप काम के प्रेशर में नहीं आएंगे, आपका एड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा, आप उसके ऊपर की से कूद के नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, यही प्रेशर अगर कम हो और यही प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो भाई साहब बच के रहिए, क्योंकि आप मुसीबत में आ सकते हैं। So very right example. जब तक blood pressure में it will not pump ourself in a कहते हैं ना उस particular range में, so definitely if our life will not survive, तो वो तो एक अलग चीज है ना। So now coming to the part, if anybody from the audience want to ask anything, then definitely this is open at any time. अगर कुछ पूछना चाहते हैं, otherwise we will move to the next question. So anybody from the audience, if they want to ask any question or something. Hello. Hello. Good morning, sir, and good morning, everyone. Morning. Morning, Abhi, morning. You are audible. Sir, I want to ask, there is a common problem, I think, between all the college students or teenagers nowadays, that they are facing some kind of loneliness being between their friends and others. So, how to overcome this? And यार ये लोनलीनेस जब तक ऑनलाइन क्लास होंगी ना, लोनलीनेस रहेगी। अभी मैं तो दिल्ली में हूँ, सितंबर 1 से हमारे स्कूल खुल गए हैं और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। तो No, sir, मैं तो यही कह सकता हूँ, ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए, आप फिर से यू विल बी अप एंड स्माइलिंग। actually, we are all in offline classes, but there is a feeling like a sukhi dali, being a part of a tree, but not nourished like you. Thank you for the question, Abhi. Yes, Anamika, go ahead. No, please, Vanna, please. Devi, go ahead. Okay. Actually, अभिमन्यु, ये हम इतना इजी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से इतना लीनियर नहीं है। लोनलीनेस इज समथिंग विच इज मोर सब्जेक्टिव, इट्स नॉट वेरी जेनरिक इन नेचर। तो हमें ये देखना जरूरी है कि पहले तो इसके कुछ जेनरिक रीजंस भी हो सकते हैं कि हम सब अपना टाइम ऐसी चीजों में ज्यादा करते हैं। जैसे कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम खेलते थे, घर के आंगन में हम सारे बच्चे इकट्ठे होके वी वुड प्ले फॉर 2-3 आवर्स एंड वी आर डन फॉर द डे। दैट इज नॉट देयर। ओके, सो नाउ इट कैन बी जेनरिक इश्यूज कि आप खुल के बातें नहीं कर रहे हो, लोग एक दूसरे से खुल के बातें नहीं कर रहे हैं, वो पूरे टाइम सोशल मीडिया में। प्लस जैसे हमने बात किया, कंपैरिजन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दीज डेज, क्योंकि हर कोई कंपैरिजन में लगा हुआ है। एंड स्पेशली ये आज के जनरेशन में जो लोग अभी स्कूल्स में हैं, उनके साथ तो, जिलेनियल्स के साथ तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो क्योंकि वो तो पैदा होते ही आजकल आई एम सीइंग किड्स जो अभी पैदा हो रहे हैं, लाइक दे आर 6 months old, दे विल नॉट ईट विदाउट फोन। ओके, तो वो तो पैदा ही ऐसे ही हो रहे हैं, वो यही देख के पैदा हो रहे हैं। सो इट्स द स्टिमुलाई इज चेंजिंग अ लॉट। तो ये कुछ जेनरिक रीजंस हो सकते हैं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा।
उसके बाद बहुत सब्जेक्टिव रीजंस भी होते हैं कि वो इंसान किस चीज से गुजर रहा है लाइफ में. इज देयर एनी इशू विद देयर पेरेंट्स, क्या उनको इश्यूज हैं, क्या क्या फील हो रहा है. तो ये काफी सब्जेक्टिव हो सकता है. सो दैट पर्सन हैज टू. एंड इसके लिए मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग हैं, मेंटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं. तो इफ somebody इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, तो आप जैसे हैं अभी, अपने फ्रेंड्स को अवेयर कीजिए, आप खुद भी अवेयर हो जाइए कि आपको हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग आउट एंड आस्किंग फॉर सपोर्ट. कि मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि आपकी जनरेशन जितनी अवेयर होगी, इस चीज को जितना नॉर्मल एंड ईजी बनाएगी, उतना अच्छा होगा हमारे लिए चेंज लाने में. सब, हर किसी को होता है कभी ना कभी लोनलीनेस, हम सब फील करते हैं. सो गो आउट एंड टॉक. तो आप जितने क्लियरली बताओगे, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि बोल पाना कि ये लोनलीनेस होता है. इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इशू. सीक सपोर्ट, जैसे कि आप रौनक से बात कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं. सो we will have to start, your generation will have to start, normalizing these things. तो solution तो Definitely. अभी और मैं कुछ नहीं दे सकती. you should talk. या वंदना. थैंक यू अनामिका. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थैंक यू सो मच कि आपने फोरम पे ये सवाल पूछा और आपने रियल स्टेट इतने करेजियसली एक्सप्रेस की कि हमें ये फील हो रहा है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो वेरी वेल डन. क्योंकि कई लोग ये चीज भी नहीं बोल पाते हैं. वो महसूस करते हैं पर वो उसे किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं. तो आपने वो चीज मेंशन की. दैट्स अ ग्रेट थिंग. अब एक सवाल आपके लिए है अभी. डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड? Yes, ma'am. Okay. So you feel that you have a good relationship with someone, any one person, ekdam Yes, deep ma'am. connection. Yes, ma'am. Yes. Okay. Perfect. So that is thing that might be something that's missing in this generation. A lot of time it happens कि हम ना जैसे हम हैं without any mask or filters, कोई हमें देखे, one person, at least that one person, there might be more, बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा हो तो, but at least one person who knows कि ये मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ और जैसा भी मैं हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है ना. कि जैसे भी मैं हूँ मैं उनके सामने वैसा रह सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, ओपनली अपने आप को बयां कर सकता हूँ. द फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड, क्योंकि ये सिर्फ फेसबुक कनेक्टेड, लिंक्डइन कनेक्टेड, ये कनेक्शन से इट्स नॉट इनफ. यू माइट बी कनेक्टेड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, but are you really connected to something? That's one thing. Am I ready to share what I feel? Do I feel comfortable enough कि मुझे अंदर जो बात हो रही है मैं किसी के सामने प्रेजेंट कर सकूं? क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, ट्रस्ट लगता है खुद पे, क्योंकि आगे वाले लोग हमको किस तरह से देखेंगे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. बट बीइंग एबल टू ट्रस्ट समवन एल्स, उसके लिए पहले हमको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. तो जब हम खुल के बात करते हैं, भले ही वो उसका सोल्यूशन मिले ना मिले, बट जस्ट द फैक्ट कि मैं बोल पाया किसी से टेक्स अस अ लिटिल फर्दर अहेड फ्रॉम लोनलीनेस. और दूसरा एक चीज है कि फाइंडिंग सम मिशन, मतलब कुछ होना लाइफ में, क्या करना है, कुछ भी चीज, एनी पर्पस. इट कुड बी कि मुझे एग्जाम में नंबर अच्छे लाने, इट कुड बी कि मुझे किसी को हेल्प करनी है, इट कुड बी कि मुझे घर में मम्मी पापा को घर ठीक रखने में, इट कुड बी एनीथिंग. बट हैविंग दैट वन थिंग विच गेट्स यू अप एंड गोइंग, that removes that sense of loneliness. जैसे अनामिका ने कहा कि it's a very subjective topic, तो कई सारे backman reason हो सकते हैं, but to get you out of that state you need a very strong reason to keep you moving forward. मेरे पास क्या reason है जिसको लेके मैं उठूं हर दिन और जाऊं उसके पीछे. So despite of feeling the loneliness, I keep going every day and I seek connections, and then it disperses over time. At the same time, reach out to, there are so many experts, there's more awareness today, reach out to them और core issues को figure out करने का आप simultaneously try करें. ये मैं कहूँगी. एंड वन थिंग जो मैं इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ऐड करना चाहूँगा बेसिकली. सो रिसेंटली आई थिंक जब मैं एक सेशन देख रहा था, दैट वाज ऑन द अल्कोहल, लाइक हाउ पीपल गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द अल्कोहल एंड देन कमिंग आउट ऑफ दैट. सो वहाँ पे ना एक कोट था दैट गेटिंग इनटू इट इज क्वाइट इजी बट कमिंग आउट ऑफ इट इज मच डिफिकल्ट. सो बेसिकली जब मैं वो रिलेट कर रहा था, जब राइटिंग्स कर रहा था, सो आई थॉट कि ये कितना सही है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सेशन दे वर रिलेटिंग लाइक कि जब जब एक फ्रेंड सर्किल होता है, जब एक सर्किल होता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि नहीं यार, अब सर्किल का आप पार्ट है तो आपको अल्कोहल लेना होगा या समथिंग टाइप, और वहां से आप हैबिट शुरू करते हैं
एंड देन फिर आप उसका पार्ट बन जाते हैं लेटर ऑन आफ्टर 20 years 30 years, और जब भी आपको रियलाइज होता है देन यू थिंक कि अब बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है. सो जब मैं उसको रिलेट कर रहा था, सो आई जस्ट थॉट इन द सेम केस एज वेल, जो हम अभी स्टूडेंट कम्युनिटी है कुछ भी है, बट व्हाट हैपेंस एट एवरी टाइम ना कि being the part of race is quite easy, किसी भी भीड़ का हिस्सा बन जाना बहुत आसान है, बिकॉज what I visualize then और what I realize कि वहां पे क्या होता है ना, वहां पे लोग होते हैं साथ में, एक क्राउड होती है, और जहाँ क्राउड है सो वी थिंक कि वी आर कंफर्टेबल. हाँ भाई, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं जो सेम कोर्स कर रहे हैं, सेम प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, या सेम कंपनी में जा रहे हैं, सेम जॉब कर रहे हैं, वट एवर इट कुड बी, है ना. सो वहां पे एक ना कंफर्टेबलनेस आती है. बट जब ईयर्स लेटर क्या होता है, एक टाइम होता है हर किसी का, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 6 साल बाद, एक रियलाइजेशन होता है कि दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस. और जब वो रियलाइजेशन होता है, सो भले ही कितनी भी क्राउड हो, कितने भी लोग हों आपके आसपास, वहां पर लोनलीनेस आ जाती है. एंड दैट लोनलीनेस कम्स जस्ट बिकॉज कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट इज कि मतलब लोग भी हैं आपके साथ, आपका पर्पस एक अलग चीज हो गई अब, और आप जिस वजह से आप क्राउड का पार्ट बने थे वो एक अलग चीज हो गई. एंड डेफिनेटली आपका पर्पस कोई रेस नहीं होता है ना, आपकी लाइफ का जो मिशन है या विजन है वो कोई रेस नहीं है. व्हाट आई थॉट वो इज सिंपली एक जैसे मैं पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ, आई डोंट नो, नीलेश मिश्रा स्टोरी टेलर है, सो दैट वो कॉन्वर्सेशंस वगैरह सुने हैं. सो आई रियलाइज कि आवर पर्पस इज टू बी लिटिल स्लो, be calm, and at the same time putting efforts to what I can say the grow and progress and celebrate the essence of life. So वहां पे क्या है ना, वो एक कनेक्टिविटी लूज हो जाती है, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा तो बन गए थे बड़ी आसानी से, क्योंकि भीड़ थी, लोग थे, हमें हिम्मत मिलेगी, नहीं चलो चलते हैं, पुश मिल गया. बट जब हमें रियलाइज हुआ 6 महीने 6 साल बाद, 16 साल बाद, जब भी रियलाइज हुआ, तो उस पॉइंट पे आके एक वो डिसकनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि अब लोग तो हैं लेकिन लोगों की भीड़ अलग है, उनका पर्पस अलग है, उनकी रेस अलग है, सेपरेट है, वो अपने अपने रियलाइजेशन से जा रहे हैं, आप अपने रियलाइजेशन से जा रहे हैं. सो दैट्स हाउ व्हाट आई फील कि करंट जनरेशन में जो लोनलीनेस है या जो इस तरह की सिचुएशंस हैं, समहाउ दे आर बीइंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन पर्टिकुलरली. ये पर्टिकुलर था जो मैं ऐड करना चाह रहा था. सो जी, आपने जो कहा रौनक जी, आई थिंक इट्स कॉल्ड वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग. या हम सभी को कहीं ना कहीं बिलोंग करना है. एग्जैक्टली. तो या तो हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उसके बाद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, वी लेट आवरसेल्व्स शाइन. और या अभी अगर जहां आपको ऐसा फील हो रहा है, मे बी यू डोंट बिलोंग देयर एंड यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बिलोंग एवरीवेयर, आपको हर जगह बिलोंग करने की जरूरत नहीं है. तो मे बी देन इट्स अबाउट वो हिम्मत होना कि मैं फाइंड करूं कि मेरी किसके साथ वेवलेंथ मैच होती है, मुझे किस तरह का चीज अच्छा लगता है. अगेन दैट कम्स डाउन टू कि मुझे पहले ये जानना कि मुझे क्या पसंद है. यू नो व्हाट ब्रिंग्स मी जॉय. कई बार होता है लोगों को पूछते हैं हम 30s में 40s में अपने, और उनको पूछे आप व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय, दे डोंट हैव एन आंसर. दे लाइक ओ एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट ब्रिंग्स मी जॉय. तो खुद को पहले समझना मुझे क्या चीज पसंद है, फिर वैसे लोगों को ढूंढना, उनके अराउंड अपने आप को सराउंड करना, और फाइंडिंग दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग देन मेक्स दैट लोनलीनेस स्लाइड अवे. So You know, just one small thing I would like to add. I just read someplace that, you know, success is what you have made, happiness is what you gave. You know, हम मतलब हर एक फील्ड में हम जो जो अपने लिए सोचते हैं, हम जो कमाते हैं, बनाते हैं, वो हमारा सक्सेस है. लेकिन हमें शायद इतना अर्ली इतना रियलाइजेशन ना हो, बट बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि हम जो देते हैं औरों को, उससे हमें खुशी मिलती है. तो अगेन द सेम लाइन दैट सक्सेस इज फ्रॉम व्हाट वी हैव मेड एंड हैप्पीनेस इज फ्रॉम व्हाट वी गेव. हम किसी को बिलोंगिंगनेस दें, प्यार दें, किसी को सहानुभूति दें, उससे ही हमें हैप्पीनेस मिलती है. हमें कुछ मिलने से बहुत कम हैप्पीनेस मिलती है. ये एक ऐड करना था. बहुत टेम्परेरी, हम कह सकते हैं बहुत टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है. हाँ, एग्जैक्टली Joy. एग्जैक्टली.